السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے حسب حال کا. حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے حسب حال کا. بدتمیزی کر رہے ہو یار. جب خود لیٹ آتے ہو تو اس وقت فٹافٹ السلام علیکم خواتین و حضرات کر دیتے ہو. آ کے خود بھی تو بتایا کرو کیوں لیٹ آئے ہو. یار تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کینال روڈ پہ، اس وجہ سے میں لیٹ تھا. وہ تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تم کیوں لیٹ تھے؟ بھائی میں نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ منظر بڑا عجیب تھا. کینال روڈ پہ ابھی ایک انڈے لے جانے والے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آلموسٹ پورا ٹرک انڈوں کا الٹ گیا تھا اور پوری سڑک انڈوں سے بھر گئی تھی اور لمبی لمبی لائنیں وہاں پہ لگ گئی تھی گاڑیوں کی. یار اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو مجھے کیوں نہیں فون کرتے؟ کیوں تم میں نے تمہیں کئی دفعہ بتایا کہ میں شاپر ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں. تم تو مذاق میں بات کہہ رہے ہو، لیکن میرا دل بہت دکھا ہے وہ منظر دیکھ کے کہ وہاں پر درجنوں کی تعداد میں بیچارے غریب لوگ اور بچے جو تھے وہ ان گندے انڈوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے. گندے مینز کہ وہ کرش ہو چکے ہوئے تھے سڑک پہ، پوری سڑک انڈوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن لوگ بیچارے جو تھے وہ شاپنگ بیگز میں اور برتنوں میں گھروں سے لا کے ان میں وہ ٹوٹے ہوئے انڈے جمع کر رہے تھے بیچارے. تو پھر ملک کے سیٹھ اور امیر لوگ اگر عییوں کو نہیں پوچھیں گے تو عییوں نے پھر یہی کرنا ہے. تمہیں پتہ ہے انڈا 8 روپے کا ہو گیا ہوا ہے. غریب آدمی اب بیچارہ کہاں کھاتا ہے؟ 2.5 سال پہلے کی بات ہے، انڈا روپیے کا تھا، اب یار 8 روپیے کا ہو گیا. اب تم انڈوں والوں سے پوچھ کے دیکھ لو، وہ بھی کہہ دیں گے بھائی جی پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا. بندہ پوچھے یار تم نہ پٹرول ککڑیاں رکھو، سی این جی ککڑیاں رکھ لو. یہ تو ابھی شکر ہے ککڑیاں باتیں نہیں کرتی، ورنہ کسی مرغی سے پوچھ لے آپ جی تو انڈا ایڈا مہنگا ہے، وہ آگے سے لڑ پڑے اتریا میرا انڈا مہنگا تو نکر والی کو لے لے جاؤ دیال جی نورانی کھیت ہوئی. انڈے نہیں روندے رہندی ہے، سونا تھوڑا مہنگا ہو گیا. میرے خیال سے خبروں پہ تبصرہ شروع کیا جائے. اچھا جی، لاس اینجلس میں امریکی صدر اوباما کے انتخابی دفتر پر نامعلوم افراد کا حملہ، شیشے اور دروازے توڑ دیے. ہمارے والے انتخابی کلچر کے جراثیم امریکہ میں بھی پہنچ گئے، ادھر بھی دفتروں کی پن توڑ شروع ہو گئی ہے. اب ادھر بھی نعرے بجا کریں گے، جگت بخت لمٹینگ چبکتے ٹھا، اوباما ٹھا، ہیلری ٹھا، مائیکل ٹھا، مولن ٹھا، کیری ٹھا، لوگر ٹھا، باؤچر تھا. دوسری طرف سے بھی نعرے لگنے ہیں، تم کتنے دفتر توڑو گے ہر گھر میں دفتر کھلے گا، تم کتنے دفتر توڑو گے ہر گھر میں دفتر کھلے گا. بہت گاند پڑنا ہے ادھر، سارے دیسی نعرے وہاں پہ فٹ کر رہے ہیں. تم دیکھنا تو صحیح، ان کی بھی حالت ہمارے جیسی ہو جانی ہے. اگلے الیکشن میں امیدوار بھی ان کے ایسے ہوں گے، ڈیوڈ گرنیٹ، مائیکل کرلا، ریچرڈ کوواڑا، لیزا کینچی. خبریں بھی اس طرح کی آیا کریں گی. کونڈا لیزا رائس جعلی ووٹ ڈالتے ہوئے پکڑی گئی. اوباما کے گھر سے 7,500 جعلی شناختی کارڈ برآمد ہوئے. نیو یارک کے بھگوان پورے پولنگ اسٹیشن پہ ڈانگیں چل گئی. واشنگٹن کے لیاری پولنگ بوتھ پر دھاندلی کی وجہ سے اوباما نے بائیکاٹ کر دیا. مشہور گلوکارہ لیڈی گاگا کے پرس سے 150 جعلی بیلٹ پیپر برآمد ہو گئے. چھوڑ دو امریکیوں کی جان یار، بس کرو، اگلی خبر پڑھو تم. بابر اعوان کا کہنا ہے کہ جعلی خادم اعلیٰ ٹوپی ڈرامے بند کریں، فوٹو سیشن کا اتنا شوق ہے تو ماڈلنگ شروع کر دیں. بہت اچھے. اعوان صاحب یہاں کسے شوق نہیں ہے فوٹو سیشن کا؟ آپ کون سا کیمرہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں نہیں میں فوٹو نہیں بنواتا، نہیں فوٹو کھچوانا حرام ہوتا ہے، میں نہیں کھچوانی، صرف بریف کیس میں پیسے تقسیم کرنا حلال ہے، میں نہیں کھچوانی فوٹو. آپ تو جناب گاڑی سے اترنے سے پہلے دایاں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہیں اور اترتے ہی بایاں ہلانا شروع کر دیتے ہیں. حالانہ وہاں کوئی بندہ نہ بندے دی ذات، تاریخ کسے دی پختن کوئی ڈے ہے، تسی ایویں بائے بائے. ہائے ہائے ہائے. آپ تو شاپنگ کرنے جائیں تو شاپنگ سینٹر کے سیکورٹی کیمرے کو بھی ہاتھ لا دیتے. جناب ماڈلنگ کا شوق اب کس سیاستدان کو نہیں ہے؟ اب تو مولانا فضل الرحمان اپنے امامے کو عطر لگا کے آتے ہیں کہ فوٹو میں سے خوشبو آئے گی.
100% दुरुस्त कह रहे हैं। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, फोटो सेशन का मौका हाथ से नहीं जाने देते दोनों। डेंगू का मामला देख लो, सैलाब उठा के देख लो। अभी चंद दिन पहले वफाकी हुकूमत की तरफ से डेंगू के खिलाफ एक इश्तिहार शाया हुआ था, वजीर आजम की तस्वीर, सदर जरदारी की तस्वीर और उतनी बड़ी डेंगू के मच्छर की तस्वीर। हाय हाय हाय, जहां वफाक के इश्तिहार में रहमान मलक की फोटो आती थी, वहां अब डेंगू की आ रही है। अभी चंद रोज पहले खादिम आला की तरफ से ये हिदायत सामने आई थी ना कि अखबारी इश्तिहारात में मेरा नाम और मेरी तस्वीर इस्तेमाल ना की जाए। आज के अखबारात और उनके इश्तिहारात उठा के देख लो, खादिम आला की खुसूसी हिदायत पर, खादिम आला की क़यादत में, खादिम आला की ज़ेरे निगरानी डेंगू के खिलाफ मुहिम। ये क्या है यार? और यार खादिम आला के अलावा डेंगू डरता नहीं किसी से। सादे छोटे मोटे अफसर के आगे तो वो पिस्तौल निकाल लेता है, की गाल है। मैंने तो सुना राणा सनाउल्लाह ने एहतजाज किया कि भाई जी वजीर आजम और सदर के साथ वफाक वाले डेंगू की तस्वीर लगा रहे हैं, खादिम आला के साथ मेरी लगाएं यार। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस बुलाएंगे तो जरूर हाजिर हो जाऊंगा। चीफ जस्टिस बुलाएंगे तो फौरन हाजिर हो जाऊंगा। जी मुशर्रफ साहब, ये जिस अदालत ने आपको सम्मन जारी किए हैं, ये रेलवे के चीफ इंजीनियर के अंडर नहीं है जनाब, ये चीफ जस्टिस के अंदर ही है। और उन्होंने सम्मन जारी किए हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं जनाब। ये वारंट का मतलब यही होता है कि अदालत में फौरन हाजिर हो। वारंट का मतलब ये नहीं होता कि जज के पुत्र का वलीमा है, वहां आके फंक्शन करे। शाबाश। सम्मन जनाब सद्दा ही होता है अदालत में पेशी का। सम्मन के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि एसी छपी पे चलाएं। ये जो जायदाद कुर्की करने का आर्डर हुआ है जनाब, ये इसीलिए हुआ है कि आप पेश नहीं हुए और कोई आपने जज के प्लाट पे मकान नहीं बना लिया। मेरा ख्याल है अदालत का हरकारा गा के बुलाएगा तो फिर आएंगे। अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा हथ कड़ियां उड़ीक दियां, आजा हथ कड़ियां उड़ीक दियां। यहाँ मिलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार ये मुशर्रफ साहब वाकई मासूम है या मैं मासूम हूँ? सर, ये रोज डेंगू डिस्कस हो रहा है। आपको नहीं लगता कि मीडिया पे डेंगू की वजह से इतनी हाइप क्रिएट हो गई भी है कि लोगों में बहुत ज्यादा खौफो हिरास फैल गया? और अल्लाह लोग के तुम्हारा क्या ख्याल है कि मीडिया क्या बताए कि डेंगू एक बहुत खूबसूरत परिंदा है और इसको अगर मुंह पे लड़ा के आप फोटो खिंचाएं तो आप हीरो लगेंगे, और डेंगू पालने से आपको इनकम भी होगी। आप अगर डेंगू फार्म बना ले तो आप करोड़ों रुपए महाना कमा सकते हैं। ये बताना चाहिए। डॉक्टर्स अगर डेंगू फार्म बना लें तो वो तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बहुत अच्छा है। एक चीज बुरी तो उसको डिस्कस तो करना है। रोजाना बंदे मार रहे हैं, आज फिर 11-12 मार गए हैं। ये बात एक हद तक ठीक है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे सारा मानोगे, ये मत मैं बता। तुम्हारी बात भी उसकी बात कह रहा हूँ कि एक हद तक ठीक है, तुम्हारी बात में ठीक कैसे कह सकते? चलो जी उसकी बात ठीक है जी, करो आपस में ठीक बातें। देखो अफरान पुत्र 2 किलो मटर ले आओ, मैं बैठ के दाने निकालता रहूं। यार इसमें क्या शक है कि मीडिया ने इसको एक गलत अंदाज में इस तरह की हाइप दी है कि जिससे बजाय ये कि अवाम को एजुकेट किया जाए, अवाम में पैनिक फैली है, खौफ और हरास में इजाफा हुआ है। अवेयरनेस जरूर देनी चाहिए थी अवाम को, इसमें कोई शक की बात नहीं। अवेयरनेस किस तरह दें बताओ तो सही ना। शहबाज शरीफ ब्लैक बोर्ड पे मच्छर बना के दिखाए आपको, साथ डॉक्टर जवेद अकरम खड़ा हो, वो बताया कि ये इसकी टांग है, ये इसका बाजू है, टांग और बाजू मिक्स ना करें, इसको फजूल ना बोलते जाओ। अवाम को डेंगू मच्छर से बचाव के तरीके बताने चाहिए और इस बात पर मीडिया का फोकस होना चाहिए, लेकिन मीडिया का फोकस शिफ्ट हो गया है उसकी जो तबाहकारी है उसकी तरफ। तो एहतियाती तदाबीर यार बता तो रहे हैं, और क्या करें बेचारे। वो शहबाज शरीफ अपनी सालगिरह वाले दिन केक छड़ के डेंगू के पीछे पीछे लगा रहा है स्प्रे पकड़ के, और कैसे बताएं? यार मैं हुकूमत के इकदामात की बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया की तरफ से जो हाइप बनी हुई है उस पर बात करना चाह रहा हूँ। तो मीडिया वाले भी तो बता ही रहे हैं कि डेंगू नामुराद से कैसे बचा जा सकता है, और क्या करें? अरे तो तुम फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो। उसकी बात यह है कि मीडिया खौफो हरास ज्यादा फैला रहा है बजाय ये कि आवाम को एजुकेट करे। ये बात तुम्हारी ठीक है और मुझे समझ भी आ गई। शुक्र है। शुक्र है।
देखो एक दानिशवर को अपनी बात समझाना वाकई शुक्र वाली बात होती है। एक दानिशवर को बात समझाना और एक दानिशवर की बात समझना, दोनों बड़ी मुश्किल चीज है। वाजी साहब, आज आपने बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू शुरू की हुई है। इसके बारे में तो मैंने एक दफा पहले भी फलसफा बयान किया था कि दिल देना तो दिल मंगना सौदा इको जिया। देखो इस वक्त क्या मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता था कि हम अवाम को ये एजुकेट करें कि डेंगू खतरनाक मर्ज जरूर है और डेंगू के मच्छर से बचाव की ये तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन कोई डेंगू इस तरह का मच्छर या ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया तबाह करने पे तुला हुआ है, या डेंगू कोई ऐसा मर्ज नहीं है जो नाकाबिले इलाज है। अवाम को इस हवाले से मालूमात देने की जरूरत थी। देखो एक बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिससे हम बिल्कुल यानी ऑल टुगेदर चशमपोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो ये है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ना। दुनिया भर में हर साल 10 लाख लोग जो है वो मलेरिया से हलाक हो जाते हैं, और हलाक होने वालों की तादाद का 5% पाकिस्तान में है। यानी पाकिस्तान में मलेरिया से हलाक होने वालों की तादाद सालाना 50,000 है, और अब तक डेंगू से कितने लोग मरे हैं? 100, 150, 200। मगर भाई साहब ये जो 100, 150, 200 आप कह रहे हैं, ये हम बात भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एक एक इंसानी जान अपनी जगह कीमती है, और इंसानी गफलत की बुनियाद पर अगर कोई इंसानी जान जाया हो रही है वो और ज्यादा अफसोसनाक बात है। बल्कि मैं तो सच्ची बात है ये समझता हूं कि ये जो मीडिया भी जो फिगर्स कोट कर रही है ये बहुत कम है। डेंगू से मुतासिर होने वालों की तादाद भी इससे कहीं ज्यादा है, और डेंगू से मरने वालों की तादाद भी इससे ज्यादा है। ये तो सिर्फ वो फिगर्स है जो बीमार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जो घरों में बीमार पड़ गए हैं और जो घरों में सेहतयाब हो गए, वो तादाद मीडिया कोट कर भी नहीं सकता किसी तरह भी। हाँ, हजारों लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे पिंड के टीम से ही दवाई लेके वहीं पड़े रहते हैं, वो आते ही नहीं है शहर में अस्पतालों की तरफ। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत शोर ज्यादा कर रही है और काम कम कर रही है? देखो बहुत ईमानदारी के साथ अगर जायजा लिया जाए तो मैं ये समझता हूं कि खास सैलाब का मामला हो या डेंगू का, खा वफाकी हुकूमत का मामला हो या सूबाई हुकूमत का, कई मौके पे मीडिया जो है वो तवाज़ुन का दामन हाथ से छोड़ देता है। लेकिन इसमें भी बुनियादी तौर पर कसूर सियासतदानों का है, हुक्मरानों का है। उन्होंने आपस में इस तरह की नूरा कुश्ती शुरू की हुई है डेंगू और सैलाब के मसले पर कि सच कहीं दरमियान में खो जाता है। हाँ, आपस में यार एक दूसरे को जुगते कर रहे हैं, बड़े फिक्रे कस रहे हैं। और मैं तो अब ये अंदाजा लगाता हूं कि ये सियासतदान भी एक्टरों की तरह अब क्लैप लेनी चाहते हैं या लाफ्टर लेना चाह रहे होते। देखो ना, सच्ची बात तो यही है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, डेंगू का मामला हो या सैलाब का मामला हो, हुकूमत के कुछ इकदामात ऐसे जरूर हैं जिससे ये एहसास थोड़ी देर के लिए जरूर उजागर होता है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल बेखबर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के भी बहुत सारे इकदामात हैं जो साफ नजर आता है कि सिर्फ फोटो सेक्शन ही इनका मकसद है, सिर्फ जाती खुद नुमाई इसका मकसद है, साफ पता चलता है। यार अल्लाह माफ करे, जब इस तरह की सूरत हाल हो जाए, कोई आफत आ जाए तो फिर भाजना से में ऐसा तो होता ही है ना। अब ये देखो ना, तुम गवर्नमेंट निकली है डेंगू मच्छर मारने के लिए, तड़ातड़ स्प्रे कर रही है, उसमें जो सादे देसी मच्छर है वो भी बेचारे मार रहे हैं। यार बड़े मच्छरों ने मुझे शिकायत की है कि यार हम तो डेंगू भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड देख के मारे हमें, अन्य वाह मारे जा रहे हैं। और मैंने तुम्हें बताया तो है कि आम मच्छर ज्यादा नुकसान करता है डेंगू की निस्बत भी। मलेरिया फैलाता है। तुमने अच्छा किया बता दिया, अब मुझे कोई टकरेगा तो मैं जवाब तो दे सकूंगा ना, वरना सादे मच्छरों ने मेरी बड़ी बेइज्जती की। उन्होंने कहा तुम किस बात का बैठ के उधर अस्पताल में सच बोल रहे होते हो, बताओ तो सही लोगों को कि डेंगू के साथ साथ हमारे शरीफ और सादे मच्छर भी मार रहे हैं। ये डेंगू मारे नाम राज जो सेठ मच्छर है, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के साफ इलाकों में लगा फिरता है, हम तो पहले गंद पे चुगियों में गुजारा कर रहे हैं। तुम ये देखो कि जिस तरह हुकूमत के इकदामात में कहीं कहीं हमें गफलत नजर आती है और कहीं कहीं कोई बेदारी के लम्हात भी नजर आते हैं, बिल्कुल इसी तरह कौम भी इस हवाले से इस आफत के लम्हे में तकसीम हुई नजर आती है कि एक तरफ आपको बहुत अच्छा रिएक्शन नजर आता है और दूसरी तरफ इंसान को इस तरह के इकदामात, इस तरह के अमल भी नजर आते हैं कि इंसान को इस कौम का हिस्सा होने पर भी शर्म महसूस होने लग जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी मिसालें भी सुनने और देखने को मिली है कि इस कौम का हिस्सा होने पर फख्र महसूस होने लगता है। ये देखो तुम्हारे सामने मिसाल बैठी है। बाकी तुम देखो कि अगर एक तरफ हमारे बहुत से जो मुनाफा खोर किस्म के सेठ हैं, उन्होंने आफत के इस लम्हे को भी एक मुनाफे का जरिया बना लिया है। फिनाइल की जो गोलियां तक है वो 4 गुना ज्यादा रेट पर फरोख्त होती रही हैं, और इससे जुड़ी हुई हर चीज यानी सैलाब से और डेंगू से जुड़ी हुई हर चीज जो है वो कुछ अरसे के दौरान 4-4, 5-5 बल्कि 10-10 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हैं चीजें। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि कुछ कंपनीज ने फ्री स्प्रे किया है
पूरे लाहौर के अंदर बिल्कुल यानी हजारों टन की तादाद में कीड़े मार स्प्रे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा मैं ऐसी लेबोरेटरीज को जानता हूं जो कोई बहुत बड़ी लेबोरेटरीज नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं पहले से कमा रही थी, उन्होंने यकसर तौर पर डेंगू के फ्री टेस्ट भी किए हैं। ये सहारा वालों ने फ्री टेस्ट किए हैं और भी बहुत सारी, ये सारा तो चलो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, गली मोहल्लों की सतह पर भी लोगों ने बिल्कुल घरों से बाहर निकलकर, इससे भी छोड़ो तुम लोगों के ऐसे हजारों की तादाद में, तुम फेसबुक पे चले जाओ, इंटरनेट की जो मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट्स हैं उन पर चले जाओ, हजारों की तादाद में नौजवानों ने अपने ग्रुप्स बनाए हैं सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए। बिल्कुल। हाँ, मैंने तो ये भी देखा कि कई मोहल्लों में और गलियों में जो छोटे डॉक्टर बेचारे बैठे होते हैं, जो घरेलू से डॉक्टर होते हैं, जिनकी दवाई ना मिले तो किसी वक्त आप भी खा लेते हैं, वो डॉक्टर जो है उन्होंने भी तड़ातड़ फ्री इलाज किए हैं। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको पनाह दे इन डॉक्टरों से। ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्होंने ये डेंगू के सीजन में ही मकान छत लिए। वाकई अजीज साहब, लालच और तमा की बड़ी बड़ी अजीब मिसालें देखने में आई हैं। अब तो ये देखो, ये पसूड़ी में सारा कुछ हो गया, जिसे इमरजेंसी कहते हैं, एकदम जो मुसीबत आ गई। अब इनको चाहिए, मेरा जहां तक ख्याल है, हूं मैं यही आदमी, ये तुम लोग मानते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो मच्छर है ना, इसने हर साल आना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा के ये ना ही आए, मगर आना तो है, आ गया ये इस इलाके में, बल्कि पूरी दुनिया में फिर रहा है। और मुझे ये भी पता चला है कि इसके पास पासपोर्ट भी ऐसा है कि इसका वीजा भी नहीं लगता। इसने आना तो इधर है ही। अब को प्लानिंग अभी से शुरू करें कि अगले साल क्या करना है, और आइंदा के लिए होशमंदी और तदब्बुर के साथ स्ट्रेटेजी बनाएं डेंगू से निपटने के लिए, और अपनी जो जलाली तबीयत है खादमे आला साहब की, वो कुछ देर के लिए साइड पे रखें। ये मैं सिर्फ पंजाब की सूबाई हुकूमत की बात नहीं कर रहा, वफाकी और सिंध हुकूमत का भी ये फर्ज है कि डेंगू और सैलाब दोनों के जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसी आफतें थी कि जिनका कुछ अरसा पहले तक जिनके बारे में पेशगोई की जा चुकी थी, तो फिर जब पेशगोई हो चुकी थी तो पेशबंदी क्यों नहीं की गई? डेंगू की भी पेशबंदी की जानी चाहिए थी, उससे निपटने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जानी चाहिए थी। दूसरी तरफ सिंध में जब सैलाब यकीनी था तो आपने क्या हिफाजती इंतजाम किए, और जो जो लोग, जो जो इदारे, जो जो सरकारी हुकाम इस गफलत के मुर्तकिब हुए हैं कि उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, कोई पेशबंदी नहीं की, उन्हें करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और सजा भी इस तरह की मिलनी चाहिए कि बाकियों को भी कानून हो जाएंगे। इसका बंदोबस्त पहले करना होता है। एग्जैक्टली। नाज़रीन, यहाँ हमें लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मोहतरम खवातीन व हजरत, वो दो हैं? नहीं, वो साथ उसके मोबाइल भी होता है ना, SMS तड़ातड़। ये जो आप लोग बदतहजीबियों का जिक्र करते हैं, उसका आगाज मैं करना चाहता हूँ। जी जी। यार बहुत ही अफसोस होता है पा जुनैद, कहीं अगर किसी जगह पे फौतगी पे चले जाएं, खास तौर पे हमारा जो गरीब तबका है मेरे जैसा, वहां चले जाएं आप फौतगी के ऊपर, यार 4-4, 5-5 दिन, बल्कि 2-2 हफ्ते जो मेहमान है वो घरों में पड़ाव डाल के बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो जिनका बेचारों का पहले ही बंदा मर गया होता है, वो उनको अपना स्यापा पड़ा होता है, रो रो के पिट पिट के उनका हलकान हुए होते हैं वो। उधर उनका खाने पीने का बंदोबस्त, उनका रहने का बंदोबस्त, यार ये बड़ी ही, पहले भी जिक्र किया हमने, मगर ऐसी अजीब सी बात है ये भी है कि मैं चाहता था कि फिर इसका जिक्र। यकीन करो कि ऐसे घरों में जहां पे ये इस तरह के रसूम और रिवाज मौजूद है, वहां पर जहां पर 5-5 दिन 10-10 दिन क़याम किया जाता है फौतगी के बाद, वहां पर खाने पीने का एहतमाम भी बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जिस तरह किसी शादी की तकरीब में किया जाता है। उसमें कीड़े निकाले जाते हैं, उस पर तबसरा किया जाता है कि कल आलू गोश्त पका था, आज फिर आलू गोश्त पका हुआ है। हाँ बिल्कुल, अगर कल आपने आलू गोश्त पकाया तो आज गोश्त आलू पका। अच्छा, फौतगी के हवाले से ही एक और बदतहजीबी ये देखने में आती है कि आप जनाजे के साथ जा रहे हैं और उस दौरान आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोबाइल पर लापरवाही के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। साफ पता चल रहा होता है कि आप मरने वाले के साथ, उसके अहले खाना के साथ, उसके गम में शरीक नहीं है, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। थोड़ा सा आपका बॉडी जेस्चर भी इस तरह के होने चाहिए कि वो आप ये महसूस करें कि आप उसके गम में, उसके दुख में बराबर के शरीक हैं। यार तुम जनाजे की बात करते हो, मैंने एक ऐसी जगह भी देखा हुआ कि मुर्दा कब्र में उतार रहे हैं और एक बंदा मुंह परे करके कह रहा कब्र में उतार रहे हैं, बस 10 मिनट बाद में आ रहा हूं यार। अब ऐसे तारे तो बिठा इनको मैं आ रहा हूं। खुदा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मोबाइल इजाद नहीं हुआ था उस वक्त क्या पूरी दुनिया का कारोबार बंद हो जाया करता था, रोजमर्रा के मामला रुक जाया करते थे? ऐसा तो नहीं था। बड़ा सुकून हुआ करता था यार। ये मोबाइल तो बजाते खुद एक बात तहजीबी है। अमान से घर वाले कड़ी कड़ी फोन करके पूछते हैं कहां पहुंच गए हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई अभी।
नहीं आज कितने बजे खत्म होगी, बंदा पूछे कल जितने बजे खत्म हुई थी वही आज खत्म होनी है, आज को 2 घंटे का शो करना है। अच्छा यार, ये डेंगू के हवाले से भी मैं चंद बदतहजीबियां आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। जी जी। ये जो फ्री टेस्ट का एक बंदोबस्त किया गवर्नमेंट ने या कुछ लोगों ने, लेबॉर्टरियों ने प्राइवेट तौर पे भी, उसमें भी एक बात तहजीबी हो रही है। चंगे भले कई सेहतमंद लोग भी जाके फ्री के खाते में टेस्ट करा रहे हैं। यार पहले इतना रश पड़ा हुआ, खुदा के वास्ते 4 मिनट निकाल लो, कोई बात नहीं। इस काम में आप बात तहजीबी ये कर रहे हैं। ये तो वो और दूसरा ये कि अगर आप 500 रुपए 1000 रुपए का टेस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो आपको वो पैसे पे करने चाहिए। आपको फ्री टेस्ट की जो सहूलत है वो उन लोगों के लिए खुली रखनी चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये डेंगू मार स्प्रे छिड़कने में भी यही बात तहजीबी नजर आ रही है। जेडे अमीर लोग हैं, अब सेठ जो टाइयां शाइयां लगा के पेंट कोट पहन के फिरते हैं, वो जो अफोर्ड करते हैं वो यार खुद 400-500 का स्प्रे खरीद के अपने इलाके में या अपने घर में कर ले। आप 1,500 का तो रोजाना कुत्तों को खाना खिला देते हैं, आपसे स्प्रे नहीं हो रहा। वही स्प्रे जो आपने फ्री में कराना है वो किसी गरीब इलाके में हो जाए। सही। और एक और बात तहजीबी जिसका मैं आज बड़ा जरूरी समझता हूँ जिक्र करना, ये जो अपनी दोस्ती दिखाने के लिए या बदतमीजी जाहिर करने के लिए लोग किसी को आवाज देते हैं पुठे नाम से, अगर ये बहुत बुरी बात। तमीज से बुलाना चाहिए। इस तरह किसी को, किसी की बेचारे की जो कमजोरी है उसको उसका एहसास नहीं दिलाना चाहिए। मसलन तमीज से कैसे बुलाना चाहिए? यार अगर कोई गंजा है तो उसे आप तमीज से भी कह सकते हैं, भाई साहब, जनाब फारुल बाल साहब, जनाब चमकता धमकता सितारा साहब। बहुत बुरा लगता है यार। और गिट्ठे, यार अगर किसी का कद छोटा है तो उसे गिट्ठा कहना जरूरी है। उसको आप ये भी कह सकते हैं मुख्तसर साहिब। अच्छा सर, एक बदतमीजी का जिक्र मैं करना जरूरी समझती हूँ। ये जो नौजवान नस्ल है, जब बस स्टॉप पे खड़ी होती है तो बस खड़ी होगी तो वो खड़े रहेंगे, जिससे अगर बस स्टार्ट हो जाती है तो वो दौड़ के बस की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं, विच इज रिस्की एंड डेंजरस। और शायद ये हरकत करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो बड़े एडवेंचरस हैं। ये तो सिर्फ बसों का ही ऐसा हाल नहीं है, ये जिन दिनों में पाकिस्तान में ट्रेन चला करती थी ना, जिन दिनों उस वक्त ट्रेन पे भी लोग ऐसे ही चढ़ते। अब तो खैर रेलवे लाइन जानवरों का जॉगिंग ट्रैक बन गई हुई है। जो उस इलाके का कुत्ता है, खोता है, वो उधर जॉगिंग कर रहा होता है। या फिर महल्ले के बच्चे आके मकनातीस टेस्ट करते हैं जुड़ता है कि नहीं। ये बहुत बुरी बात है, दौड़ के बस पे चढ़ना या दौड़ के वैगन पे चढ़ना या दौड़ के रेल पे चढ़ना, कभी अगर आ जाए तो उस वक्त तो बंदा एडवेंचर महसूस कर रहा होता है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखे, को लतबन टूट जाए तो फिर सारी जिंदगी का रोग लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार पा जुनैद, कल मैं सुबह गया हूँ गोगे खारे की दुकान पे। किसकी दुकान पे? गोगा खारा। गोगा खारा? यार तुम्हें पूरी तफसील जरूर, कुछ शनाख्ती कार्ड बनाते हो तुम? बताओ तो सही। गोगा खारा एक बंदा है, उसकी दुकान है, वहां पे स्क्रैप की बात खत्म हो गई। अच्छा, मैंने कहा शायद खारे पानी की दुकान है। नहीं यार, गोगा खारा उसे वैसे कहते। यार वो एक बंदे के साथ बातें कर रहा था, मैं हैरान हो गया। उसको कह रहा था कि भाई जी, मेरा जो बाप है ना वो बड़ा खपती हो गया, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब वो फरमाइशें करता है, अजीब अजीब हमें हुक्म दे देता है। और वो जो आगे जो समझाने वाला था तुम्हारे वर्गा दानिश्वर, वो उसे कह रहा था कोई बात नहीं, छोड़ो, बुजुर्ग खपती हो ही जाते हैं, गुजारा किया करो। मुझसे तुम यार तवक्को रखते हो, मुझे किससे तशबीह दे रहे हो? कोई खुदा का खौफ करो। मैं किसी को मशवरा दे सकता हूँ? चलो मैं अपनी हंसी वापस ले लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मगर वो बंदे पे मैं हैरान हो रहा था कि बजाय उस बेवकूफ को समझाने के, खारे को अकल कर, तुम्हारा बाप है वो जो कह रहा है वो एक तजर्बे और अपनी अकल और दानिश के मुताबिक कह रहा है, उस पे अमल करो। उसको कह रहा है कोई बात नहीं यार, बुजुर्ग खपती हो ही जाती है, तो सही है। ये अब हमारे माशरे में भी आहिस्ता आहिस्ता ये जो सोच है ये कार फरमा हो रही है कि बुजुर्ग जो है उनके मशवरे, उनकी सोच जो है वो आज काबिल अमल नहीं है। ये वाकई बहुत अफसोसनाक सोच है और इस रुझान को तब्दील करना चाहिए। हमें यूथ को ये समझाना चाहिए कि जो उम्र में आपसे बड़े हैं, वो तजर्बे में भी आपसे बड़े हैं। जरूरी नहीं है कि बुजुर्गों की हर बात जो है वो दुरुस्त हो, लेकिन ये सोच लेना, ये तसव्वुर कर लेना कि बुजुर्गों की सोच, बुजुर्गों के मशवरे या कोई भी बुजुर्ग जो हुक्म देते हैं वो उनकी दौर में तो उनके दौर में ठीक साबित हो सकता है, आज के दौर पर उनकी ये सोच लागू नहीं
होती, ये सोच बिल्कुल गलत है। नहीं, बहुत बुरी बात है। मैं देख लो तुम्हारी हर बात गौर से सुन रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक बुजुर्ग बंदा कह रहा है अगर, तो मुझे सीखना चाहिए। मैं अब टीन एज में ही कहना शुरू हो जाऊँ कि नहीं जी ये गलत कह रहा है, इट इज वेरी बैड। मेरा ख्याल है उसे वाकई गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा नहीं कर गया, मैं आज इस खुशगुमानी में मुब्तला हो गया था कि शायद आज तुम कोई सीरियस बात करने के मूड में हो। वाकई यार सीरियस बात ही की है मैंने, तुमने तो हमें खामखा टक्कर मारने वाला पोज बना लिया। खाक सीरियस बात की है, अपनी सारी बुजुर्गी मुझ पे उंडेल दी है। चलो यार कट्ठे जो टुरे हुए हैं तो फिर वंड खाओ खंड खाओ, सियाने कहते हैं। हमारे यहाँ एक और हमारे माशरे में रुझान ये भी बहुत तेजी के साथ फरोग पा रहा है कि हम बुजुर्गों की बात मान लेते हैं, अपने माँ बाप की बात इस तरह मान लेते हैं कि सिर्फ बायसे बरकत है। हम इसलिए बुजुर्गों की बात तस्लीम नहीं करते कि ये उनका मशवरा साहिब मशवरा है, इसलिए तस्लीम कर लेते हैं कि इससे बरकत बढ़ेगी। बरकत भी बढ़ती है, डेफिनेटली बरकत में भी इजाफा होता है जो आप काम करने जा रहे हो, लेकिन बुजुर्गों का जो मशवरा है उसकी एक अपनी वैल्यू है। ये आजकल के बच्चों को तो ये जो कंप्यूटर है ना, अल्लाह इसमें वायरस लाए, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, उनके दिमाग खराब कर दिए कि हम सब कुछ देख लेते हैं, हम बहुत ज्यादा जानते हैं, मैंने इंटरनेट पे देख लिया है, मैंने फलां बुक में पढ़ लिया है, बस उनको यही मान है, इसलिए वो बुजुर्ग की सुनते ही नहीं। यार ये जो तुम बात कर रहे हो ये कई साल पहले अकबर अलाहाबादी ने कह दी थी। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बेटे बाप को खबती समझते हैं। यार देखो जरा, अकबर अलाहाबादी और अजीजी कच्ची आबादी ने एक ही बात की है यार। और अब ये तुम्हारी बात साइंटिफिकली यानी साइंसी बुनियादों पर साबित हो चुकी है कि जो बुजुर्गों के मशवरे हैं वो ज्यादा देर पा होते हैं। अभी हाल ही में बरतानिया की 2 यूनिवर्सिटीज ने एक रिसर्च की है, उन्होंने मुख्तलिफ जिंदगी के जो मामलात हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जो पेचीदा मामलात हैं, वो 2 ग्रुप्स के सामने रखे। ग्रुप ए में उन्होंने 66 साल से लेकर 82 साल तक की उम्र के बुजुर्गों को रखा और दूसरे ग्रुप बी में उन्होंने 20 से 36 साल तक के नौजवानों को रखा। अच्छा। और उनके सामने जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात और उनसे जुड़े सवालात रखे गए। उनमें से बहुत सारे सवालात आम जिंदगी से मुताल्लिक थे और बाद मफौकुल फितरत किस्म के सवालात रखे गए। अच्छा। और उनके जवाबात जांचने के लिए बाकायदा मुहक्किकीन का एक पैनल बनाया गया। जब उनके जवाबात सामने आए तो नहीं तो जीता कौन, मेरे वाला बी ग्रुप या तुम्हारे वाला ए ग्रुप? अच्छा यार मेरे वाला ही ए ग्रुप सही। ए ग्रुप के जो जवाब थे उस पैनल ने यह करार दिया कि इनके जवाबात या जो जिंदगी के मुख्तलिफ जो पेचीदगी है, उनके जो सोल्यूशन इन्होंने पेश किए हैं वो ज्यादा तवीलुल मुद्दत है और दानाई पर मुश्तमिल है इनके जवाबात। जबकि ग्रुप बी जो नौजवानों का ग्रुप था, उन्होंने जो सोल्यूशंस दिए हैं वो वक्ती और आर्जी हैं, यानी शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस पेश किए हैं। अच्छा। जाहिर है यार, जो बुजुर्ग होते हैं उनका एक तजर्बा होता है, उन्होंने जिंदगी देखी होती है, हर ऊंच नीच उनको पता होता है क्या है, उनका तजर्बा बता देता है कि भाई इसको ऐसे कर लो। जवान आदमी तो हमें शौका हो कि जो किताबों में पढ़ा है या हमें जो कंप्यूटर पे देखा है उस पे वो बात करता है, बिल्कुल सही। उसमें वो तजर्बा नहीं होता, तो पक्का जवाब तो तजर्बे वाला बंदा ही सही दे सकता है। और यूथ का हमारे यहाँ एक ऐसा सेगमेंट भी मौजूद है जो ये दावा करता है कि ये बात बुजुर्गों की गलत है या सही, हमने ये इस बात को तजर्बा करना है, हमने खुद इस तकलीफ से गुजर कर देखना है, फिर हम इसकी ऑथेंटिसिटी को क्रेडिबल करार दे सकते हैं। वो खुदा के बंदो सीधी सीधी बात ये है कि अगर बुजुर्ग आपको बता रहे हैं कि ये कांटा चुभने से दर्द होती है तो जरूर आपने खुद कांटा चुभोकर देखना है, उस दर्द से गुजरना है। यार ये जवानी की तरांगी ऐसी होती है। मेरे नाना अबू अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो समझाया करते थे कि बेटा जब चिड़ी का बोट जो होता है ना बच्चा, वो जब पहली उड़ारी उड़ता है ना घोंसले में से, जब पहला जंप करता है तो दुआ करनी चाहिए कि वो किसी मजबूत और मोटी टहनी पे, पक्की टहनी पे बैठे। सही। अगर वो अल्लाह ना करे किसी कमजोर शाख पे बैठता है ना तो वो शाख हिलती है, फिर तो वो फिर अकड़ता है, पर शर खिलारता है कि आहा की जवानी आई है, दरख्त ही हिला दिया पकड़ के। ब्यूटीफुल। और फिर जब वो दूसरी उड़ारी उड़ने के लिए वो कच्ची शाख पे जोर लगाता है ना तो उससे उड़ा नहीं जाता, वो शाख झूल जाती है। फिर उसे समझ आती है कि ओहो ये मेरी जवानी नहीं थी, शाख ही कमजोर थी। बिल्कुल, जबरदस्त फलसफा। आहिस्ता आहिस्ता ये मानेगा मुझे, तुम फिक्र ना करो। खुदा का खौफ करो, तुम्हें मानेगा। तुम्हारे नाना अबू का ये फलसफा था। हाँ तो वो तो फौत हो गए, उन्हें सुनाया तो मैंने ही है ना। मेरे नाना अबू थे वो। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। ओहो। शेर के घर जैसे शेर ही पैदा होता है, इसी तरह आबा के घर आबा ही पैदा होता है। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
यार किसी वक्त जाने भी दिया करो, कह दिया करो वाह ये तेरे सदके जाऊं, कहना ही होता है, कौन सा सच्ची मुच्ची सदके जाना होता है। जो साहब खैरियत है, क्या देख रहे हैं? और डेंगू मार स्प्रे कराया है जी स्टूडियो। जो साहब कराया हुआ है, घबराए ना। जो साहब आप इतना डरते हैं डेंगू से? सारे डरते ने डेंगू मेरा क्लास फेल होए, ये डेंगू पिछो गुजरात दे रहने वाले सारे ही डरते ने भाई डेंगू कोलों। वजीरे आला हत्थ ही स्प्रे फड़ के भज्जा फिरदा, गमले चो अंडे लभदा फिरदा ओदे। लेकिन जो साहब ये तो आप तस्लीम करें कि पंजाब हुकूमत पूरा जोर लगा रही है इसको कंट्रोल करने में। जोर लान रही है, डेंगू केड़ा 12 व्हीलर है, छोटा जिहा ते डेंगू हुंदा धफ्फे ना मर जांदा, जोर लाने दी कोई गल। देखिए ये बात तो तस्लीम करें, वो अपनी सालगिरह के रोज भी सारा दिन डेंगू के पीछे भागते रहे। ओदे सालगिरह केड़ी ओदी 16वीं सी, 60वीं सालगिरह सी। इस उम्र च अगर बच्चे कहन ना बाबा जो आपकी सालगिरह, तो बंदा कहते तो बेटा मिट्टी पाओ इस गल 60 मोमबत्तियां बालना कोई आसान गल ते नहीं अजकल, पहले बिजली खत्म हो गई। बिजली खत्म हो गई, बिजली का मोमबत्तियों से क्या ताल्लुक है? बत्ती बाल के मोमबत्ती बाली दी नेरे च मोमबत्ती बालो तो उंगल सड़ जाती है। वैसे भी जुनैद साहब 16वीं सालगिरह ते ताड़ियां मारी दियां ने और 60वीं सालगिरह ते वादा मारी दियां ने। को पानी का गिलास फड़ाओ, मैं दवाई खानी है। चलो ये तो अब ऐसे ही लगे हुए हैं। ये बात तो सारे तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल लड़कों की तरह, नौजवानों की तरह भागदौड़ कर रहे हैं। केड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, गमलियां जो पानी सुखांदा फिरदे। डेंगू मुके ना मुके सारे बूटे सड़ जाने ने। भागदौड़ जो साहब असल में डेंगू की ज्यादा परवरिश जो है वो गमलों के पानी में हो रही है। वो केड़े गमले च डेंगू दी पनीरी लगी। अच्छा जो साहब सारी बातें छोड़े, आपके दौर में भी तो डेंगू ने तबाही मचाई थी। हमारे दौर में जब डेंगू आया था तो हमने टेबल पे बैठ के उससे मुज़ाकरात किए। अच्छा। हम समझते हैं कि हर मसला फामो तफहीम से तय होना चाहिए। उससे बैठ के बात की थी कि भाई की चाहना भाई तू, कहते मैं खून चूसना चाहता हूँ। अच्छा। मैं कहा साढ़े होंदियां तेरी जुरत की हुई है, साढ़े होंदियां तो अवाम वाल वेखदे सी ना मुरादा खून चूसनी आ गई, तू अंब चूस ले, गंढेरियां चूस ले, खून चूसनी आ गई, एडा चौंसा खून है साडे। मैं दौड़ जाए तो तेरी लत्तां भनदे ना। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਭੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਕਈ ਚੋਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਲੰਦਨ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 2 ਕੋ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ नहीं आएगा। नहीं जज साहब कि मशवरा तो दें कि डेंगू के खिलाफ क्या करना चाहिए, आपने क्या किया था? देखो जी, ये जो सीबीसी टेस्ट करवा रहे हैं, ये हमने सीबीसी टेस्ट नहीं था करवाया, हम एबीसी से शुरू हुए थे। नाल में सूफी ने किया, मैं कहा सूफी डांग ते कपड़ा बन ते चो बना अग ला कपड़े नू ते दौड़ गलियां जरा धुएं नाल मच्छर दौड़े। बाद फिर सूफी ने मच्छर अगे ला लिया, अग ला के कपड़े नू दौड़िया फिर गलियां च। लोगों ने समझे कि धुएं वाला मलंग आ गया, पैसे भी देते रहे ने सूफी नाल, सूफी मच्छर भी कटता रहे। फिर दूसरा हमारी हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि जेड़ा जितने मच्छर मारेगा उतने पैसे इनाम मिलेगा। मच्छर की 2 टांगे उतार के लाओ और पैसे ले जाओ। वो फिर स्कीम बंद करनी पड़ गई। क्यों? और सूफी धागे निके निके कट के ले आए जी मच्छर दी लत्तां ने। वो तो चेक किया तो मैं कहा ये केड़ा काटन दा मच्छर है। कहते चोरी साहब काटन मिल च बड़े सन, उत्थे मारे ने। अच्छा जैसा डेंगू को एक तरफ रखें, आज कौम आपसे बहुत खुश है, जो आपने अमेरिका के बारे में बयान दिया है उस पर कौम बहुत खुश है। नहीं, मैंने तो 2 टोक बात की है कि पाकिस्तान के बगैर अमेरिका इस खिते में कुछ नहीं कर सकता। मैं तो उस मुंडे नूं भी फोन करन लगा था, जेड़ा
ओबामा अच्छा ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। सब गुजरात तो नहीं, गुजरावाला के बारे में जरूर सुना है कि उनकी वालदा ने गुजरावाला में क़याम किया था। ਅਰੇ ਕਿਆਮ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਆਈ ਸਿੱਧਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾत ही आई थी। मैंने तो उसकी भी बात का जवाब दिया है। वो जो ढोलन ने कहा था कि ढोलन यार माइक ढोलन मुलन ਮਾਈਕ ਮੋਲਨ ਢੋਲਣ ਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਕੋ ਵੀ ਮੈंने कहा है, मैं कहा ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਯਾਰ, ਅਕਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਸ਼ਰਾਉਣ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ये क्या कह दिया आपने? ਕਹਿਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਡਰ ਗਏ। चौधरी साहब वैसे हैं तो दलेर और बड़े दिल वाले। चौधरी साहब ने अभी 5 करोड़ रुपया सलाब जद खान को दिया। अच्छा नहीं, सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। 75 लाख इंसान पाकिस्तानी हमारे उधर परेशान है। लेकिन चौधरी साहब बहुत से लोग देना चाहते हैं, लेकिन साख का मसला है, दें किसको? मैनू दियो, मैं आगे जाके पकड़ाऊंगा यार। अच्छा एतबार तो करना चाहिए ना एक दूसरे बिल्कुल पे। बिल्कुल मुश्किल वक्त आया हो तो वो क्या शायर कहता है कि माही मेरे रोंदना मारी में दाल आया जिंद जानता। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।